Hello students, today I will solve exercise 5.1 question number 3. Okay, so question number 3, for the following APs write the first term and the common difference. Okay, so first term we can say A, here we can say A1, and D means common difference equal to D. So first question here, let us solve this question. So first sequence given that 3 1 minus 1 minus 3 means first APs we have 3 1 minus 1 minus 3. Okay, so A means first term 3 and common difference means D equal to A2 we have A1 3, A2 1, A3 minus 1, A4 minus 3. So we can write D equal to A2 minus A1. So A2 we have 1 and A1 we have 3. So 1 minus 3 equal to minus 2. Okay. Again, next question, second number. Solution. So A equal to minus 5. If it is given here minus 5, minus 1, 3 and 7, and D equal to, we know that A2 minus A1. A2 minus A1. So we have A2 equal to minus 1 and A1 equal to minus 5. So minus 1 plus 5 equal to 4. Okay. Again, next question. A we have 1 by 3, first term A. D equal to A2 minus A1. So A2 we have 5 by 3 and A1 we have 1 by 3. So 5 by 3 minus 1 by 3, 4 by 3. Okay. Question number 4. So question number 4 we have A equal to 0.6. D means common difference A2 minus A1. So we have A2 equal to 1.7 and A1 we have 0.6. So 1.7 minus 0.6 equal to 1.1. Okay. Now we will solve question number 4. So question number 4, which of the following APs, if they forms an AP, find the common difference D and write 3 more terms. बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज मीन्स इसमें कौन सा एपीज है, अगर एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए और उसका 3 मोर टर्म्स और फाइंड कीजिए. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, वी हैव सीक्वेंस 2 4 8 एंड 16. सो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, डी. यहाँ पे देखेंगे ये एपी है या नहीं है, एपी चेक करने का देखेंगे, हम डी निकालेंगे. तो यहाँ पे हम D1 पहले निकाल लेते हैं. डी गिवन लिख लीजिए, गिवन सीरीज आर या सीक्वेंस आर, या सीधा लिख लीजिए 4 2 4 8 एंड 16. अब यहाँ पे देखिए डी निकाल लेते हैं हम, D1 निकाल लेते हैं. D1 क्या हो जाएगा, A2 minus A1. So A2 we have 4, A1 we have 2. So 4 minus 2 equal to 2. Then D2 equal to A3 minus A2. So A3 we have 8 and A2 we have 4. Then 8 minus 4 equal to 4. अब यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे आ गया क्या कि 2 और यहाँ पे 4 दोनों क्या है, डिफरेंट है. यहाँ पे एक और निकाल लेते हैं, D3 भी निकाल लेते हैं. D3 equal to A4 minus A3. So 16 minus 8 equal to 8. अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट है, मीन्स D1 भी अलग है, D2 भी अलग है और D3 भी अलग है. मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, और कॉमन डिफरेंस जब सेम नहीं होगा तो एपीज नहीं होगा. तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर D1 नॉट इक्वल टू D2 not equal to D3. Okay, so
the given sequence, the given AP is so therefore hence the given sequence not forms an AP. Hence the given sequence has, इस तरह लिख सकते हैं, the given sequence has not forms an AP. ओके, मीन्स ये गिवन सीक्वेंस ये जो दिया हुआ है AP में नहीं है. Second question, 2, 5/2, 3 and 7/2. So first of all we will find D1. So D1 we have, so D1 we can write A2 minus A1. So A2 we have 5/2 and A1 we have 2/1 we can write. So 2 is the LCM. So 5 minus 2 1 is 2. So 2 2 is 4. So 1/2 मीन्स D1 मेरे पास कितना आ गया 1/2. अगेन D2 we can write A3 minus A2. So A3 we have 3 and A2 we have 5/2. So we can write 3/1. So 2 is the LCM. So 1 2 is 2. So 3 2 is 6 minus 5. So 6 minus 5 equal to 1/2. अब देखिए यहाँ पे इक्वल आ रहा है. अगेन फिर फाइंड कर लेते A3 D3 we can write A4 minus A3. So A4 equal to 7/2 minus A3 is 3/1. So 7. So 2 LCM. 7 minus 3 2 is 6. So 1/2. अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि D1 भी इक्वल आ रहा है, D2 भी इक्वल आ रहा है, D3 भी इक्वल आ रहा है. तो यहाँ लिख सकते हैं therefore D1 equal to D2 equal to D3. Means the given sequence has an AP. या फिर लिख सकते हैं it is forms an AP. It is forms an AP. ये AP का फॉर्म में है. अब इसके बाद बोल रहा है कि इसका क्या निकालिए, कॉमन डिफरेंस. तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसके बाद यहाँ लिख दीजिए, इधर रब कर देते हैं. डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मीन्स D इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2. अब इसका नेक्स्ट टर्म निकालना है. तो 7/2 प्लस 1/2 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8/2 मीन्स 4 हो जाएगा. 2 4 जा 8 मीन्स 4 हो जाएगा. अगेन 4 प्लस 1/2 देन क्या हो जाएगा इक्वल टू 8 प्लस 1/2 मीन्स 9/2. अगेन ऐड कर दीजिए 9/2 प्लस 1/2. सो 9 और 1 10/2. 2 5 जा 10 मीन्स 5 हो जाएगा. मीन्स इसको लिख सकते हैं क्या कि 3 टर्म्स कौन कौन सा हो जाएगा, मोर 3 टर्म्स. इक्वल टू 4 9/2 और क्या हो जाएगा 5. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. सो वी विल फाइंड D. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड D1. सो D1 we can write A2 minus A1. So A2 we have minus 3.2
माइनस 1.2, सो -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। अब माइनस कर दीजिए, सो 0 हो जाएगा, -1.0 होगा। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो -2 होगा, मीन्स -2 होगा आपका D1। ओके, अगेन वी विल फाइंड D2। सो D2 इक्वल टू A3 माइनस A2। सो A3 वी हैव -5.2 माइनस 3.2। ओके, सो D2 इक्वल टू -5.2 प्लस 3.2 मीन्स क्या हो जाएगा आपका, माइनस प्लस माइनस, -2 यहाँ पे भी होगा। ओके, अगेन D3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3। सो A4 भी है -7.2 माइनस 5.2। सो -7.2 प्लस 5.2 मीन्स क्या हो जाएगा, -2 यहाँ पे भी हो गया। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3। सो लिख सकते हैं हेंस, या देयरफॉर -1.2 माइनस 3.2 माइनस 5.2 माइनस 5.2 माइनस 7.2 forms NAP। ओके, ये AP के फॉर्म्स में है। ओके, अब ये AP का फॉर्म्स है, तो D इक्वल टू डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कितना आ गया, -2। अब इसका 3 टर्म्स क्या क्या होगा, 3 टर्म्स यहाँ लिख देते हैं हम, 3 टर्म्स। 3 टर्म्स देखिए क्या क्या, -7/7.2 है, 5 यहाँ था तो 2 हो गया, तो -9.2 देन 9 10 11 -11.2 देन -13.2 आंसर। ये आपका हो गया थर्ड टर्म। सो क्वेश्चन नंबर 4, सो विल फाइंड D1। सो A2 माइनस A1, सो A2 -6 प्लस -10, सो -6 प्लस 10 इक्वल टू 4 D1। then D2, then we will find D2, so we can write D2 equal to A3 minus A2, so A3 equal to -2 minus -6, so -2 plus 6 equal to 4। again we will find D3, so D3 equal to A4 minus A3, so A4 we have 2 minus -2, so 2 plus 2 इक्वल टू 4 हो गया। तो लिखेंगे देयरफॉर, सबका क्या है, कॉमन डिफरेंस सेव है, तो देयरफॉर D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3। सो लिखेंगे देयरफॉर -10 -6 -2 और 2 आर फॉर्म्स एंड AP। अब इसके बाद क्या निकालना है, 2 और टर्म निकालना है, तो 2 + 4 8 हो जाएगा, 2 + 4 6 हो जाएगा, देन 6 + 4 10 हो जाएगा, देन 10 + 4 14 होगा। ओके, इसी आंसर।